السلام علیکم پیارے ریڈرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت مکمل ناول یار دلم لے کر میں حاضر ہوں۔ یہ کہانی شوق چنچل نیلم اور سخت مزاج زاویار کی ہے، جہاں نوک جھونک، زبردستی کا نکاح اور نفرت آہستہ آہستہ محبت میں بدل جاتی ہے۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ آپ چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ نیلم، میں کہہ رہی ہوں بیٹا، وہاں دھیان سے رہنا۔ پچھلی بار بھی گئی تھی تو تمہاری ممانی شکایت کر رہی تھی کہ تم نے ان کے بیٹے کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ اب ایسا نہ کرنا۔ اپنی الماری سے کپڑے نکالتی نگہت بیگم نے مڑ کر اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے تنبیہ کی، جو کہ بڑے سکون سے بیڈ پر بیٹھی اپنے رنگ برنگے کپڑے اور جوتیاں بیگ میں ٹھونسنے میں مصروف تھی۔ نہیں ماما، اب دم نہیں کروں گی، اب تعویذ کروں گی۔ تم سنتی نہیں ہو؟ شادی کا گھر ہے، اور ویسے بھی زاویار کو تمہاری یہ حرکتیں بالکل پسند نہیں ہیں، اس لیے تمیز سے رہنا۔ نگہت بیگم نے اسے پھر سے لتاڑا تھا۔ میں اتنی معصوم ہوں، بھلا میں کیسے کسی کو تنگ کرنے لگی؟ وہ ہٹلر خود ہی ہر وقت غصے میں بھرا رہتا ہے، جیسے اس نے دنیا بھر کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہو۔ نیلم نے اپنا بیگ پیک کرتے انتہائی شرارت اور بے نیازی سے جواب دیا تھا، جس پر اس کی ماں نے بے بسی سے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ یہ شہر کا منظر تھا جہاں نیلم اپنی ماں کے ساتھ گاؤں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کے والدین کا اچانک سے عمرے کا پروگرام بن گیا تھا، اور نیلم کا ویزے کا مسئلہ ہو جانے کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ اس مبارک سفر پر نہیں جا سکتی تھی۔ اتفاق سے انہیں دنوں گاؤں کی آبائی حویلی میں اس کے ننیال میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ ایک مہینہ بعد اس کے بڑے ماموں کے اکلوتے بیٹے زاویار شمس کی شادی ہونے والی تھی۔ زاویار، جو کہ پورے خاندان کا سب سے باروب انسان تھا، جس کے غصے سے حویلی کے بچے کانپتے تھے۔ نیلم کے والدین نے سوچا کہ وہ عمرہ کر کے سیدھا گاؤں آ جائیں گے، اور تب تک نیلم اپنی نانی کی حویلی میں کزنز کے ساتھ وقت گزار لے گی۔ نیلم کے لیے تو کسی لاٹری سے کم نہیں تھا۔ وہ پورا ماہ اپنی کزن کے ساتھ مل کر خوب ہلہ گلا کرنے والی تھی۔ اپنا خیال رکھنا اور مجھے کوئی شکایت نہ ملے۔ نعمان صاحب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جی پاپا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اس نے خوشی خوشی اپنے والدین کو ایئرپورٹ کے لیے الوداع کیا اور خود اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر وہ گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتی گھومتے پھرنے لگی، ڈانس پریکٹس کی منصوبہ بندی کرتی رہی۔ کچھ گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد جب گاڑی دادا جان مہروز شمس کی شاندار اور پرانی حویلی کے بڑے سے چوبی دروازے پہ سامنے رکی، تو نیلم نے ایک گہری اور پرسکون سانس لی۔ حویلی میں داخل ہوتے اسے رونق اور شادی کی گہما گہمی کا احساس ہوا۔ کشادہ صحن میں چارپائیاں بچھی ہوئی تھی اور خاندان کی عورتیں مختلف کاموں میں مصروف تھیں۔ حویلی کا روایتی انداز اور مٹی کی بینی بینی خوشبو نیلم کو ہمیشہ بہت پسند آتی تھی۔ اسے دیکھتے اس کی کزن زویا، ہیرا اور دانیال خوشی سے چیختے اس کی طرف بھاگے۔ اس کے پیچھے پیچھے چھوٹے ماموں کا بیٹا سعد، جو ہمیشہ کھانے پینے کا شوقین تھا، اور فیشن کی دیوانی ماہا بھی دوڑتی ہوئی آئی۔ نیلم نے بھاری بھاری سب کو گلے لگایا۔ ان کی باتوں کا شور پورے صحن میں گونجنے لگا۔ یار نیلم، شکر ہے تم آ گئی، اب تو شادی کا مزہ دگنا ہو جائے گا۔ سچ بتاؤ، بارات والے دن کا لہنگا کیسا لگا؟ زویا نے اس کا بازو ہلاتے انتہائی ایکسائٹمنٹ سے پوچھا۔ ارے کپڑوں کو چھوڑی نیلم، آج شام تم بس تیار رہنا، ہم سب گاؤں والے گول گپے کھائیں گے، میں نے پہلے ہی پلان بنا لیا ہے۔ ساتھ نے اپنا پیٹ کھجاتے فوراً کھانے کی بات کی، جس پر سب ہنس پڑے۔ ہم نے تو آج رات بیٹھ کر مہندی کے ڈیزائن فائنل کرنے ہیں اور نیلم کے ساتھ مل کر ڈانس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ ماہا نے فوراً ساتھ کی بات کاٹتے اپنا ایجنڈا پیش کیا۔ ان کزن کی اس بے تکلفی اور پیار بھری نوک جھوک سن کر نیلم کی سفر کی ساری تھکان اتر گئی۔ اتنے میں دادا جان بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ ان کے ساتھ چھوٹی ممانی اور پھپھو بھی تھی، جو کہ شادی میں شرکت کے لیے کچھ دن پہلے ہی آ چکی تھی۔ نیلم دوڑ کر اپنے نانا کے گلے لگی، جسے پورے خاندان میں سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ میری بچی آ گئی، اب اس حویلی کی رونقیں اور بھی بڑھ جائیں گی، جیتی رہو۔ مہروز شمس نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے اپنی شفقت کا اظہار کیا۔ تبھی کچن سے اس کی بڑی ممانی سعیدہ بیگم زاویار کی والدہ باہر نکلی۔ وہ نیلم کی ان شرارتوں اور بے باک انداز سے ہمیشہ نالا رہتی تھی، خاص طور پر اس لیے کہ نیلم اور زاویار کی کبھی آپس میں نہیں بنتی تھی۔
दोनों कज़िन्स जब भी मिलते, उनके दरमियान कोई ना कोई जंग शुरू हो जाती थी। अस्सलाम वालेकुम ममानी जान, कैसी हैं आप? नीलम ने इंतहाई मासूमियत से मुस्कुराते सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। और तुम आ तो गई हो? अब हवेली में कोई नया हंगामा ना खड़ा करना, जावियर के सामने कम ही जाना। वो आजकल शादी के इंतजामात की वजह से बहुत आगे उलझा हुआ है। सईदा बेगम ने उसे जरा सा घूरते हुए तनबिया की, जिस पर नीलम ने होंठ दबाकर अपनी हंसी रोकी और इंतहाई फर्मा बरदारी से सर हिलाया। हवेली में नीलम की आती जैसे एक नई जान आ गई थी और सबसे छोटी होने का भरपूर वो फायदा उठाती थी। रोजाना दोपहर डलते ही जब हवेली के बड़े अपने आराम के लिए कपड़ों कमरों में चले जाते, तो सब कजन्स मिलकर गांव के बड़े कुएं और सरसब्ज खेतों की सैर को निकल जाते। नीलम सबसे आगे होती थी और अपनी बातों और हकड़ों से सबको हंसाती रहती थी। वो एक जिंदा दिल और चुलबुली लड़की थी, जिसे किसी की परवाह नहीं होती थी। कजन्स उसे ऐसे हंसता मुस्कुराता देखकर समझते, जो उसकी हर बोरियत और थकावट को दूर कर देती थी। हवेली में जावियर की मौजूदगी की वजह से सब कजन्स थोड़ा डरे रहते थे और सहमे, क्योंकि वो वाकई एक हिटलर था, जो किसी भी वक्त किसी पर भी बढ़ सकता था। उसकी शख्सियत का रूप सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देता था। मगर जावियर इन दिनों अपनी शादी और बिजनेस के कामों में बहुत मसरूफ था। वो अक्सर शहर के चक्कर लगाता रहता था, जिसका फायदा उठाते नीलम और उसकी कजन की फौज पूरी आजादी से गांव में घूमती फिरती थी और सब मिलकर आम के बागों में जाते, कुएं के ठंडे पानी से मुंह धोते और कच्ची पगडंडियों में भागते एक दूसरे को तंग करते रहते थे। ये दिन नीलम की जिंदगी के सबसे खूबसूरत और बेफिक्र दिन थे। आज फिर हस्बे मामूल वो सब शाम के वक्त कुएं की सैर करके वापस आ रहे थे। सूरज गरूब हो रहा था और खेतों में हल्की हल्की खनकी छाई हुई थी। नीलम कच्ची पगडंडियों पर चलती साथ और माँ से बातें कर रही थी। बीच बीच में वो किसी बात पर जोर से हंस भी पड़ते थे। उनके कहकों की आवाजें दूर तक जा रही थी कि अचानक उनके सामने एक खस्ता हाल और पुरानी सी दीवार के पीछे से एक खौफनाक और बड़ा सा कुत्ता निकल आया। कुत्ते ने उन्हें देखकर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उसके गले से निकलने वाली गुर्राहट और उसकी लाल आंखें देखकर सब कजन्स के तोते उड़ गए थे। भागो, दानियाल ने चीखते हुए कहा था, और इससे पहले कि कुत्ता उनकी तरफ झपटता, सब कजन्स ने अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध दौड़ना शुरू कर दिया। लड़कियां अपने दुपट्टे संभालती खेतों के दरमियान कच्चे रास्तों में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। नीलम जो सबसे आगे चल रही थी, अब डर के मारे सबसे पीछे रह गई थी और कुत्ता मुसलसल भौंकता उनके पीछे आ रहा था। हाय अल्लाह, बचाओ मुझे, साथ रुक जाओ, मुझे साथ ले जाओ, ये कुत्ता मुझे काट लेगा। नीलम हाँफते हुए चिल्लाई थी और उसने अपने कपड़ों की परवाह किए बगैर दौड़ने की रफ्तार मजीद तेज कर दी थी। वो सब करते पड़ते एक दूसरे को धक्के देते उस कुत्ते की पहुंच से दूर एक पुख्ता सड़क की तरफ निकल आए थे, जहां पहुंचकर कुत्ते ने उनका पीछा छोड़ दिया था और वापस मुड़ गया था। सबके सांस बुरी तरह से फूले हुए थे और वो सड़क के किनारे खड़े होकर लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। बच गए, मगर कसम से आज तो जान ही निकल गई थी। आइंदा मैं कभी इस कुएं की तरफ नहीं जाऊंगी, तौबा है मेरी। हिरन ने अपने सीने पर हाथ रखते हाँफते हुए कहा। तो सबने इस बात में सर हिलाया था और एक दूसरे की खाक आलूद हालत देखकर हंसने लगे थे। नीलम ने अपनी सांस बहाल करते जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि इसके दाएं पांव की सैंडल का तस्मा बुरी तरह से टूट चुका है। उसे झुककर उसे जोड़ने की कोशिश की, मगर वो पूरी तरह से अलग हो चुका था और उसे पहनकर चलना अब नामुमकिन था। लो जी, अब ये नई मुसीबत, मेरे जूतने ने भी अभी टूटना था। अब मैं इस तरह लगड़ा कर कैसे गिर जाऊंगी? नीलम ने झंझलाते हुए अपना टूटा हुआ जूता हाथ में पकड़ा और नंगे पांव ही सड़क पर चलना शुरू कर दिया। कच्चे रास्ते, खेतों की मिट्टी की वजह से उसके नाजुक और सफेद पांव पहले ही गंदे हो चुके थे और अब सड़क की धूल और कंकर उसे मजीद खराब कर रहे थे। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, जबकि वो इन्हें गुस्से से घूरती हुई पैदल चल रही थी। अभी वो मोड़ मुड़कर हवेली की तरफ जाने ही वाली सड़क पर पहुंचे ही थे कि अचानक उनके सामने स्याह रंग की शानदार जीप आकर रुकी। जीप को देखते सबके चेहरे के रंग उड़ गए और उनकी हंसी वहीं गायब हो गई, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि ये जीप किसकी है। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला और जावियर शम्स अपनी पूरी वजाहत के साथ बाहर निकला। उसे स्याह रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी। वो एक हफ्ते के लिए शहर गया हुआ था
और आज ही वापस लौटा था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि घर के बच्चे इस तरह शाम के वक्त सड़कों पर सवार हो रहे होंगे। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आई थी और उसकी गहरी नजरों ने उन सब की खाक आलूद और परेशान हालत का जायजा लिया था। ये क्या हुलिया बनाया हुआ तुम सबने? और ये कौन सा वक्त है बाहर आवारागर्दी करने का? घर में शादी है और तुम सब वहां होने के बजाय यहाँ ख्वार हो रहे हो। जावियर की गर्जदार आवाज सुनकर सब कजन्स के सर झुक गए थे और किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि इस कुत्ते वाली बात वो बताए। जावियर की नजरें एक एक चेहरे पर होती नीलम पर आकर रुक गई, जो कि हाथ में अपना टूटा हुआ जूता पकड़े नंगे पांव खड़ी थी। उसके पांव धूल और मिट्टी से अटे हुए थे और जावियर को नीलम की लापरवाही देखकर शदीद गुस्सा आया। और ये क्या तरीका है नीलम? तुम्हारे पाँव में जूता क्यों नहीं है? और तुम इस तरह नंगे पाँव सड़क पर क्यों खड़ी हो? तुम्हें जरा तमीज नहीं है कि एक जवान लड़की को किस तरह रहना चाहिए? तुम्हारी माँ ने तुम्हें शहर में यही सिखाया है क्या? जावेर गुस्से से नीलम की तरफ बढ़ा था और उसकी कड़ी तनकीद पर नीलम का चेहरा भी गुस्से और खपत से लाल हो गया था। जावेर का नीलम की माँ को बीच में लाना उसे शदीद बुरा लगा था। वो वैसे भी जावेर से कभी दबने वाली नहीं थी और इस वक्त वो अपने टूटे हुए जूते और कुत्ते के खौफ से पहले ही दबी हुई थी। उसे सर उठाकर जावियर की गुस्से से भरी आंखों में देखा। इतना गुस्सा करने के बजाय जहान सिकंदर की तरह अपने जूते उतार कर दे देना। नीलम ने सर उठाकर जावियर की गुस्से से भरी आंखों में देखते इंतहाई डिटाई और बेनियाजी से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर जावियर के माथे की शक्लें मजीद गहरी हो गई। अब ये जहान सिकंदर कौन सी नई मुसीबत है? जावियर ने अपनी झिंझलाहट को बमुश्किल दबाते हुए पूछा था। नीलम ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें हैरत से फैलाई थी। हाय, को नहीं पता? आपने जन्नत के पते नहीं पढ़ा क्या? उसमें हीरो अपनी हीरोइन को नंगे पांव देखकर फौरन से अपने जूते उतारकर उसके कदमों में रख देता है। और आप है, एक तो इस खून खार कुत्ते की वजह से मेरा शूज आगे ही टूट गया, ऊपर से आप मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हैं। नीलम ने बकायदा मुंह बनाते हुए उसे एक रोमानवी नॉवल के हीरो की मिसाल दी थी, जिस पर जावियर का पारा साथ में आसमान को छूने लगा। उसके कजन जो कि पीछे खड़े डर रहे थे, वो भी नीलम की इस बेवक्त की बकवास पर दिल ही दिल में ला हौल वला कुव्वत पड़ने लगे। बस अपनी चूंच बंद रखो और सीधा गाड़ी में बैठो। मुझे तुम्हारी इन फजूल कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है और आइंदा अगर तुम लोग मुझे इस तरह आवारा करती करते नजर आए तो मैं तुम सबकी टांगे तोड़ दूंगा। जाविर ने अपनी गर्जदार आवाज में सबको डांटते हुए जीप का पिछला दरवाजा खोला। सब खामोशी से एक दूसरे को धक्के देते हुए जीप में सवार होने लगे। नीलम भी लंगड़ाती हुई आगे बढ़ी और माहा और जोया के साथ वो पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। जाविर ने गहरी और गसीली सांस ली और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। गाड़ी में खामोशी थी। एसी की ठंडक के बावजूद जावियार के गुस्से की तपिश को सब महसूस कर सकते थे। नीलम के पाँव में सड़क पर नंगे पाँव चलने की वजह से शदीद जलन और दर्द हो रहा था। उसे बेध्यानी में सुकून हासिल करने के लिए अपने दोनों पाँव समेट कर सीट पर रख लिए थे। जावियार जो कि ड्राइविंग करते बार बार बैक किए हुए मिरर से पीछे देख रहा था, उसकी नजरें जैसे ही नीलम के मिट्टी से भरे पाँव पर पड़ी, उसने इंतहाई लापरवाही से उसकी कीमती जीप की सीट पर रखे हुए थे। उसका जब्त जवाब दे गया था। पाँव नीचे उतारो, क्या सीट गंदी करनी है? कभी मैनर्स नाम के लफ्ज से वास्ता पड़ा है तुम्हारा? जावेर ने मिरर में नीलम की आंखों में देखते इंतहाई सख्त लहजे में डांटा था। मेरे पाँव में जलन हो रही है, लगता है छाले पड़ गए हैं और आपको अपनी इस खटारा जीप की सीट की पड़ी हुई है। नीलम ने भी उसी तेजी से जवाब दिया था और उसे पाँव नीचे उतारने के बजाय उसने मजीद डिटाई से सीट पर जमा दिए थे। जावेर ने अचानक गाड़ी को एक जोरदार ब्रेक लगाई, जिससे सब झटका खाकर आगे की तरफ गिरे थे। मैंने कहा पाँव नीचे उतारो नीलम, इससे पहले कि मैं तुम्हें इस सड़क पर उतार दूं और तुम पैदल लंगड़ाती हुई जाओ। जावेर की आवाज में अब वो खतरनाक गूंज थी जिसके बाद बहस करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती थी। नीलम ने जावेर के पास उस गुस्से को देखते दिल ही दिल में उसे कोसते हुए गुस्से से पाँव नीचे पटके थे और मुंह मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगी थी। उसकी आंखों में खफत और गुस्से से आंसू आ गए थे, मगर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। हवेली पहुंचते ही नीलम ने किसी से बात किए बगैर तेजी से दरवाजा खोला
और लंगड़ाती सीधी अपने कमरे की जानिब चले गई। उसे जावियर के उस बेरहम रवैये पर शदीद गुस्सा आ रहा था। कमरे में पहुंचकर नीलम ने खुद को बेड पर गिरा लिया। उसका गुस्से से बुरा हाल था। कुछ ही देर में जावियार, माहा और दानियाल भी उसके कमरे में आ गए थे। साद उसके लिए किचन से ठंडा जूस और कुछ सैंडविचेस लेकर आया था ताकि उसका गुस्सा कुछ कम हो सके। यार नीलम, तुम भी कमाल करती हो। जावी भैया के सामने ऐसे बातें करने की क्या जरूरत थी? वो तो वैसे ही वक्त ब वक्त गुस्सा ही रहते हैं। ऊपर से तुमने उन्हें जहान सिकंदर की मिसाल दे दी। मुझे तो लगता है कि आज सच में वो सबको सड़क पर उतार देंगे। महा ने उसके पैरों से नरमी से लोशन लगाते हुए कहा, जिस पर नीलम ने तकिए में मुंह देकर एक लंबी सी सांस छोड़ी थी। तुम लोग तो सबके सभी डरपोक हो। उनकी बड़ी बड़ी आंखों और गुस्से से डर जाते। कोई आसमान से उतरे, कोई हर वक्त है सब पर रोब झाड़ते रहते हैं। मेरे बाबा ने मुझे किसी से डरना नहीं सिखाया। मैं तो उसे बता कर रहूंगी कि नीलम के रूप में नहीं, किसी के रूप में नहीं आती। नीलम ने बेड से उठकर बैठ के अपने जूस का गिलास पकड़ा और इंतहाई पुरअज़्म लहजे में ऐलान किया, जिस पर सब कज़न ने बेसाख्ता हंसकर उसका साथ दिया। छोड़ो यार, जावी भैया को तुम अपना मूड मत खराब करो। कल से हम कुएं की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि आम के बाग में पिकनिक मनाएंगे। जोया ने बात को बदलते उसे तसल्ली दी और फिर सब मिलकर नीलम का मूड ठीक करने के लिए इधर उधर की बातें करने लगे। हवेली में नीलम को आए हुए अब 15 दिन गुजर चुके थे और इन 15 दिनों में उसने हवेली के कोने कोने में अपनी शरारतों के झंडे गाड़ दिए थे। जावियर के साथ उसकी रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई नोकझोंक तो होती ही रहती थी। शादी के इंतजामात के सिलसिले में जावियर को एक हफ्ते के लिए शहर से जाना पड़ गया था। उसकी रवानगी की खबर सुनते हवेली के तमाम कजन्स में खुशी की लहर दौड़ गई थी। जावियर के जाते ही हवेली का माहौल बिल्कुल बदल गया था, जैसे कोई भारी बोझ सबके सरों से हट गया हो। नीलम की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने फौरन अपने शरारती टोले को इकट्ठा किया। जावियर नामी हिटलर जा चुका है। अब पूरे एक हफ्ते के लिए रास्ता साफ है और इसी खुशी में हम सब मिलकर एक ग्रैंड मूवी नाइट प्लान करेंगे। नीलम ने इंतहाई जोशो खरोश से अपना प्लान पेश किया, जिस पर दानियाल ने फौरन अपना हाथ खड़ा कर दिया। मूवी नाइट तो ठीक है, मगर कहाँ देखेंगे? लाउंज में तो दादाजान को आवाज जाएगी और हमारे कमरों में छोटी सी स्क्रीन है। दानियाल की बात पर सब सोच में पड़ गए, मगर अचानक महा की आंख में एक शरारती सी चमक उठी। जावी भैया के कमरे में, उनके कमरे में सबसे बड़ा होम थिएटर सिस्टम है और एसी की कूलिंग भी सबसे शानदार होती है। वो तो वैसे भी एक हफ्ते बाद ही आएंगे। हम रात को चुपके से उनके कमरे में चलते हैं। महा की इस तजवीज पर पहले तो सब डर गए, क्योंकि जावियार के कमरे में उसकी इजाजत के बगैर कदम रखना एक बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। मगर नीलम ने सबका हौसला बढ़ाया। अरे डरते क्यों हो? हम रात को जाएंगे, मूवी देखेंगे और फिर सुबह होने से पहले पहले सब कुछ वैसे ही साफ करके वापस आ जाएंगे। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। नीलम की इस यकीन दहानी पर सब मान गए थे और फिर रात के लिए चिप्स, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरी खाने पीने की चीजें इकट्ठी करने की तैयारियां शुरू हो गई थी। रात का पहर था और हवेली के तमाम बड़े अपने अपने कमरों में गहरी नींद सो चुके थे। जब ये फौज दबे कदमों, हाथों में खाने के पीने के ढेरों पैकेट्स और बोतलें उठाए जावेर के शानदार और नफीस कमरे में दाखिल हुई थी। जावेर का कमरा वाकई किसी 5 स्टार होटल के कमरे जैसा था। हर चीज अपनी जगह पर करीने से रखी हुई थी और एक मखसूस सी मर्दाना खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। नीलम ने सबसे पहले जाकर एसी ऑन किया और फिर दानियाल ने होम थिएटर पर एक मजाहिया और हॉरर मूवी लगा दी थी। सब कजन जावेर के उस कीमती और नरम गदाज बेड पर और कुछ कलीन पर गद्दे बिछाकर बैठ गए थे। हर मूवी के साथ साथ उनका शोर और हल्ला गुल्ला भी शुरू हो गया था। कमरे का हुलिया कुछ ही देर में बिगड़ना भी शुरू हो गया था। चिप्स के रैपर, पॉपकॉर्न के दाने, खाली बोतलें यहाँ वहां बिखरने लगी थी। जावेर की वो कीमती बेडशीट, जिस पर कभी सिलवटें भी नहीं आती थी, बुरी तरह से उलझ चुकी थी। नीलम के हाथ में कोल्ड ड्रिंक का एक बड़ा सा ग्लास था और वो महा की किसी बात पर हंसते हुए पीछे की तरफ गिरी थी कि अचानक उसका हाथ साथ के पांव से टकराया और कोल्ड ड्रिंक का सारा ग्लास सफेद और भूरे रंग के कलीन पर गिर गया, जिस पर एक गहरा और बदनुमा सा दाग फैलना शुरू हो गया। हाय अल्लाह, ये क्या किया नीलम तुमने? तो जावी भैया तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हीरा ने अपना मुंह खुले का खुला छोड़ते इंतहाई
खौफजदा आवाज में नीलम को डराया था, जिस पर नीलम का अपना दिल भी एक लम्हे के लिए दंग से रह गया था। मगर उसने अपनी खफत छुपाने के लिए फौरन कजन्स की तरफ देखा। ओ हेलो, मैं अकेली नहीं हूँ जनाब। आप सब भी इस जुर्म में मेरे साथ बराबर के ही शरीक हैं। अगर जावेर ने मुझसे कुछ कहा ना, तो मैं सबके नाम बता दूंगी। नीलम ने अपनी बात मुकम्मल की ही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बजा था और बाहर से मुलाजमा की घबराई हुई आवाज आई थी। जावेर भैया आ गए हैं और वो सीधा अपने कमरे की तरफ आ रहे हैं। ये सुनना था कि सब कजन्स के जैसे तोते उड़ गए। मूवी नाइट्स का सारा मजा एक सेकंड में गायब हो गया। भागो, साथ ने सबसे पहले चीख मारी और दरवाजे की तरफ दौड़ा। सब कजन्स अंधाधुंध एक दूसरे को धक्के देते कमरे से बाहर भागे थे। नीलम जो कलीन साफ करने के लिए बाथरूम से तौलिया लेने गई थी, जब वो गीला तौलिया लेकर बाहर निकली तो कमरे में कोई नहीं था। हैं, ये सब कहाँ गए? वो ये सोच ही रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला और सावयार अंदर दाखिल हुआ। नीलम के तो जैसे पाँव तले से जमीन ही निकल गई। वो तौलिया हाथ में पकड़े सकते में आ गई। वो शहर से अपना काम करके जल्दी खत्म करके वापस आ गया था ताकि शादी के बाकी इंतजाम देख सके। मगर अपने कमरे में कदम रखते उसकी थकावट मजीद गुस्से में बदल गई। कमरे का बुरा हाल, बेडशीट बिखरी हुई, रैपर्स और पॉपकॉर्न हर तरफ गिरे हुए थे और सबसे बढ़कर उसकी इस कीमती कलीन पर एक गहरा ब्राउन दाग चमक रहा था, जिसके पास बिल्कुल ही नीलम हाथ में गीला तौलिया पकड़े मुजरिमों की तरह खड़ी थी। जावेर देखकर आग बगोला हो गया था। उसने दरवाजे को जोर से बंद किया, जिसकी आवाज से नीलम के कंधे उछल गए थे। ये सब क्या है? नीलम, कमरे में तूफान किसने बर्पा किया है? और तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? जावेर की आवाज में वो दहाड़ थी जिसने नीलम के अंदर तक खौफ की लहर दौड़ा दी। मगर वो भी अपनी जिद की पक्की थी। उसने डरते डरते सर उठाया और जावेर की आंखों में देखा। वो मैं हम सब मूवी देख रहे थे और गलती से कोल्ड ड्रिंक गिर गई। मैं तो बस इसे साफ करने लगी थी। नीलम ने हकलाते हुए अपनी सफाई पेश की। मूवी देख रहे थे? तुम्हें किसने इजाजत दी मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में घुसने की? तुम लोगों ने मेरे कमरे को कचरा कुंडी बना दिया है और अब मुझे तुम बहाने बना रही हो। जावेर गुस्से से उसके इतना करीब आ गया कि नीलम को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। जावेर ने अपना लैपटॉप बैग सोफे पर पटका और नीलम की तरफ उंगली उठाकर इंतहाई सख्त लहजे में हुक्म दिया। अभी और इसी वक्त इस पूरे कमरे की सफाई करोगी तुम। एक एक रैपर उठाओगी, इस बेड को ठीक करोगी। इस कलीन का दाग बिल्कुल साफ होना चाहिए। जब तक कि कमरा पहले जैसा नहीं हो जाता, तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। जावेर का ये आमिराना अंदाज नीलम की बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैं कोई आपकी नौकर नहीं हूँ जो आपके कमरे की सफाई करूं। मैंने ये अकेले सब नहीं किया, बाकी सब भी थे। मैं तो जा रही हूँ। नीलम ने जिद करते दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर जावेर ने फौरन से उसका रास्ता रोक लिया और वो उसका बाजू पकड़कर उसके इतना करीब आया था कि एक पल के लिए दोनों का दिल जोर से धड़का था। मैंने कहा ना कि तुम इस कमरे को साफ करोगी, तो इसका मतलब तुम ही करोगी। बाकियों से मैं सुबह निपट लूंगा। इसे चुपचाप सफाई शुरू करो। जावेर ने अपने बाजू सीने पर बांध दिए थे और उसके चेहरे पर एक ऐसा सख्त तासुर था जिसे देखकर नीलम को अंदाजा हो गया कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। उसने गुस्से से जावेर को घूरा और बुड़बुड़ाते हुए जमीन से रैपर उठाना शुरू कर दिया। वो एक एक रैपर उठाती और दिल ही दिल में जावेर को दुनिया जहान की बददुआएं देती। जावेर बड़े सुकून से सोफे पर बैठ गया था और उसने अपना लैपटॉप खोलकर अपना काम भी शुरू कर दिया था, जैसे उसे नीलम के गुस्से से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। नीलम ने सारा कचरा डस्टबिन में डाला, बेड की सिलवटें ठीक की और फिर गीले तौलिए से कलीन का वो सीधी दाढ़ रगड़ने लगी। उसकी कमर में अब दर्द होने लगा था, माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। मगर जावेर ने एक बार भी उस पर तरस नहीं खाया था। रात काफी गुजर चुकी थी और नीलम सफाई करते और उसका दाग साफ करते करते थक कर नढाल हो चुकी थी। जब आखिरकार कलीन का वो दाग साफ हो गया और कमरा अपनी पुरानी और साफ सुथरी हालत में वापस आ गया, नीलम ने गहरी सांस ली और अपने बिखरे हुए बालों को पीछे की तरफ झटका दिया। मैंने पूरा कमरा चमका दिया है, अब तो जाने दे। नीलम ने थकन ज़्यादा लहजे में कहते ही जावेर को लैपटॉप पर काम करते चौंका दिया। जावेर ने लैपटॉप की स्क्रीन से नजरें हटाकर कमरे का जायजा लिया, जो कि अब बिल्कुल साफ हो चुका था। फिर उसने नीलम के थके हुए मगर गसीले चेहरे को देखा।
जिस पर अभी भी जिद और अना की झलक थी। आइंदा ध्यान रखना, अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो सारी जिंदगी सफाई करना पड़ेगी। अब तुम जा सकती हो। जावेद ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए बड़े जुमाइनी अंदाज में कहा था और दोबारा अपने लैपटॉप की जाने मुतवज्जा हो गया। नीलम ने गुस्से से अपने दांत पीसे और पांव पटकते हुए कमरे का दरवाजा जोर से बंद करके बाहर निकल गई थी। जावेद ने दरवाजा बंद होने की आवाज पर एक नजर बंद दरवाजे की तरफ देखा और उसके होठों पर एक इंतहाई दबी दबी मगर पुरकशिश सी मुस्कुराहट उभरी थी। अपने कमरे में गुस्से से भरे वो वापस आते नीलम ने तहैया कर लिया था कि वो इस हिटलर से अपना बदला जरूर लेगी, मगर शादी की मसरूफियात इतनी बढ़ गई थी कि उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। वक्त पड़ लगाकर उड़ रहा था और हवेली में तैयारियां अपनी अरूज पर पहुंच चुकी थी। इन्हीं दिनों निगहत बेगम और नुमान साहब भी अपना उम्रा मुकम्मल करके सीधा गांव पहुंच गए थे और उनके आने पर जैसे हवेली में खुशियां दोबाला हो गई थी। नीलम तो अपने वालिदैन को बहुत देखकर बहुत खुश हुई थी। सबने उनका बहुत शानदार इस्तकबाल किया और दादा जान तो उसके आने और उम्र की खुशी में पूरे गांव में मिठाई बांटते रहे थे। उनकी बखारियों तो वापसी और खुशी में हवेली के लॉन में एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया गया था, जहाँ पूरे खानदान के साथ गांव के मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। दावत के दौरान नीलम एक खूबसूरत से नीले लिबास में तितली की तरह यहाँ से वहाँ उड़ते फिर रही थी। वो साथ को खाने से टोकती तो कभी जोया और माहा के साथ मिलकर कह के लगाती। उसकी इस बेफिक्री और शौकी पर जावियर की गहरी और पुरस्रार निगाहें बार बार जाकर ठहर रही थी। वो दोस्तों में बैठा था, मगर उसकी तमाम तर तवज्जो का मरकज वो नीली तितली थी, जो कि उसकी परवाह किए बगैर अपनी मस्तियों में मगन थी। अचानक मेहमानों को खाना पेश करते नीलम तेजी से मुड़ी और सीधी जावियार से जा टकराई, जो कि डूंगा उठाने के लिए खड़ा हुआ था। नीलम के हाथ से शीशे का प्याला गिरने वाला था कि जाविर ने दहाई फुर्ती से उसका हाथ थाम लिया। दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराई तो वक्त जैसे एक पल के लिए थम सा गया। जाविर की आंखों में इस वक्त एक ऐसी तपिश थी जिसने नीलम की धड़कनों को बेकाबू कर दिया। ध्यान से चला करो, हर वक्त हवाओं में उड़ना जरूरी है क्या? जाविर ने उसका हाथ छोड़ते धीमी मगर मसफूरकन आवाज में सरगोशी की, जिस पर नीलम जल्दी से नजरें चुराती वहां से खिसक गई। वो समझ गई थी कि इस हिटलर की आंखों में आज कैसी कशिश थी जो उसे कंफ्यूज कर रही थी। उस शानदार दावत के ठीक 2 दिन बाद जाहिर की मेहंदी की रस्म थी, जिसने हवेली में एक नया हंगामा बर्पा कर दिया था। जावेर की शादी दादाजान के एक पुराने दोस्त की बेटी से तय थी, जो कि शहर में रहते थे। हवेली को बरकी कुमकुमों और गेंदे के फीलों से किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था। ढोलक की थाप और कजन के गीतों ने माहौल को बेहद दिलफरेब बना दिया था। नीलम ने पीले और सब्ज रंग का इंतहाई खूबसूरत और घेरदार लहंगा पहन रखा था, जिसके साथ माथे पर झूमर और हाथों में भरी हुई चूड़ियां उसे किसी रवायती शहजादी का रूप दे रही थी। वो माहा और जोया के साथ मिलकर डांस की प्रैक्टिस कर रही थी और सारा घर उनकी इन चहल पहल से महफूज हो रहा था। जावेर सफेद शलवार कमीज में पीले रंग का रुमाल कंधे पर डाले मेहमानों को अटेंड कर रहा था, मगर उसकी निगाहें बार बार उस शोख लड़की को ढूंढ रही थी जो आज अपनी दिलकशी से कहर डाल रही थी। रात की जब रस्म खत्म हुई तो सब कजन थक हार लग कर लाउंज में बैठ गए। नीलम किचन में पानी पीने के लिए निकली तो कॉरिडोर में अंधेरा होने की वजह से उसका बाहरी लहंगा किसी चीज से उलझा और वो बुरी तरह लड़खड़ाई। हाय अल्लाह! उसके मुंह से बेसाख्ता निकला और इससे पहले कि वो फर्श पर गिरती, एक मजबूत बाजू ने उसे कमर से थामकर अपनी तरफ खींच लिया था। नीलम ने घबरा कर आंखें खोली तो सामने जावियार का पुरकशिश चेहरा था, जो इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसें नीलम के चेहरे से टकरा रही थी। तुम हमेशा तूफान मेल क्यों बनी रहती हो? हड्डियां तुड़वाने का बहुत शौक है क्या? जावियर की आवाज में वो मखसूस तंज था, मगर उसके हाथ की तरफ में तहफ्फुज था, अपनाहत थी। नीलम ने फौरन खुद को सीधा किया और उससे 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। आपको तो बस मुझे डांटने का बहाना चाहिए। अंधेरा था इसलिए पाँव फिसल गया, और वैसे भी कल आपकी शादी है। अपने होने वाली दुल्हन के नखरे उठाएं, मुझ पर रोब जमाने की कोई जरूरत नहीं है। नीलम ने अपनी घबराहट को खपकी के पीछे छुपाते हुए कहा और जल्दी से वहां से चली गई। अगली सुबह हवेली का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। आज बारात का दिन था और हर तरफ अफरा तफरी मची थी। सब लोग अपने अपने बेहतरीन लिबास पहने तैयार हो रहे थे। निगत बेगम और सईदा ममानी मेहमानों के तवाज़ा में लगी हुई थी।
जबकि दादा जान लाउंज में बैठे बारात की रवानगी का वक्त तय कर रहे थे। और जावियार अपने कमरे में स्याह रंग की शानदार शेरवानी पहने खड़ा था और आईने में अपने अक्स को दिख रहा था। उसके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी, बस एक संजीदगी थी जो कि उसकी शख्सियत का लाजमी हिस्सा बन चुकी थी। बारात बस निकलने ही वाली थी कि अचानक दादा जान के फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से लड़की के बाप की रोती हुई आवाज सुनाई दी, जिसने दादा जान के कदमों तले से जमीन खींच ली थी। लड़की वालों की तरफ से की इंतहाई शर्मनाक इतला दी गई कि बारात ना लाए, क्योंकि लड़की रात की तरीकी में अपने किसी पुराने आशना के साथ घर से भाग गई है और वो लोग शदीद खौफ और शर्मिंदगी का शिकार हैं और माजरत ख्वाह हैं। ये खबर सुनते ही दादा जान के हाथ से फोन गिर गया और वो सोफे पर दब से बैठ गए थे। हवेली में जैसे किसी ने मौत की खबर सुना दी हो। एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया था। जब सबको इस वाकये की हकीकत का मालूम हुआ तो एक कहराम मच गया। सईदा मुमानी तो सदमे से रोने लगी थी और नामान साहिब दादा जान को संभालने की कोशिश कर रहे थे। जावेर जब कमरे से बाहर आया तो लाउंज का ये मातमी मंजर देखकर उसके माथे पर शिकने पड़ गए। दादा जान ने कांपती आवाज में से सारी हकीकत बताई तो जावेर का चेहरा बेइज्जती के एहसास से सुर्ख हो गया। आज उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। उसकी आंखों में जैसे अंगारे दहक उठे थे और उसकी मुट्ठियां इतनी सख्ती से भींच गई थी कि उसकी मर्दानगी पर एक बहुत बड़ा वार था। पूरा खानदान सदमे में था और कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब इस हतक से कैसे बचा जाए। नीलम जो अपने कमरे में तैयार हो रही थी, वो लॉन्च में होने वाले शोर और रोने की आवाजें सुनकर बाहर आ गई थी। उसने सुर्ख रंग का इंतहाई खूबसूरत जोड़ा पहन रखा था और उसकी मासूमियत दीदनी थी। क्या हुआ? बारात क्यों नहीं लेकर जा रहे सब लोग? इस तरह परेशान क्यों है? नीलम ने हैरत से सबके उतरे हुए चेहरों को देखा और पूछा। जोया ने रोते हुए आगे बढ़कर उसे सारी बात बताई कि दुल्हन अपनी किसी आशना के साथ भाग गई है। ये सुनना था कि नीलम ने दुनिया के 8वें अजूबे का काम किया। वो अफसोस करने के बजाय ताली बजाकर जोर से हंसी और उसका वो बेसाख्ता कहका उस खामोश लाउंज में बम की तरह गिरा था। लड़की की किस्मत बहुत अच्छी थी जो भाग गई, वरना इस हिटलर से शादी करके बेचारी सारी जिंदगी रोती रहती। अच्छा हुआ उसकी जान छूट गई इस खड़ूस से। नीलम ने इंतहाई तमस्खराना और तंजिया अंदाज में कहा। उसकी इस बात पर वहां मौजूद हर शख्स हैरत ज़दा से उसे देख रहा था। कभी तो सोच समझ कर बोला करो। विगत बेगम ने गुस्से से आगे बढ़कर उसे खामोश करवाने की कोशिश की, मगर उसकी हंसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे तो जावेर को नीचा दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया था। जावेर जो पहले ही गुस्से से पागल हो रहा था, नीलम का ये तमस्खराना कहका सुनकर उसकी जब्त की आखिरी दीवार भी ढह गई। उसने नीलम को ऐसी खूनी नजरों से देखा कि उसकी हंसी हंसी वही होठों पर जम गई और उसे अपनी गलती का शदीद एहसास होने लगा। मगर जावियर ने नीलम से कुछ कहने के बजाय अपने गुस्से को एक इंतहाई सर्द और पुरअज़्म रोक लिया और सीधा दादा जान की तरफ बढ़ा, जो कि सर पकड़े बैठे थे। दादा जान, मुझे नीलम से निकाह करना है, अभी और इसी वक्त। जावेर के उस गैर मुतवक्का अल्फाज ने हवेली के दरो दीवार हिला दिए। उसके इस अचानक और धमाका खेज फैसले पर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सईदा मुमानी जो कि रो रही थी, उनकी तो हिचकी ही बन गई और निगहत बेगम ने बेयकीनी से जावियर को देखा था। नीलम के तो पैरों से जमीन ही खिसक गई थी और उसका रंग पीला पड़ गया था। ये तुम क्या कह रही हो? जावियर बेटा, होश में तो हो ना? नुमान साहब ने घबरा कर पूछा। जाविर अपनी जगह एक चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा था। उसकी आंखों में एक ऐसा जुनून था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। मैं बिल्कुल होश में हूँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। आज इस घर से बारात जानी है। वो नहीं जाएगी, मगर निकाह जरूर होगा, और वो भी नीलम से। अगर आप में से किसी ने भी मेरे इस फैसले से इनकार किया या मुझे रोकने की कोशिश की, तो मैं ये घर क्या, ये मुल्क भी छोड़कर चला जाऊंगा और फिर मेरी शक्ल कभी नहीं देख पाएंगे आप लोग। जावेर ने इंतहाई सख्त और हतमाई धमकी दी थी, जिसने सबके दिलों में खौफ बिठा दिया। दादा जान जानते थे कि जावेर जो कहता है वो कर गुजरता है और उस वक्त उसे रोकना नामुमकिन था। नीलम जो कुछ देर पहले हंस रही थी, उसकी हालत देखने लायक थी। उसकी हंसी को ब्रेक लग चुका था और वो खौफजदा नजरों से जावेर को देख रही थी, जो कि उसकी किस्मत का फैसला कर चुका था। मुझे मार दे, लेकिन इस हिटलर से हरगिज शादी नहीं करूंगी।
मेरी जान ले ले आप सब लोग मिलकर, मुझे अपने इस खड़ूस इंसान के पल्ले मत बांधे, मैं सारी जिंदगी रोती रहूंगी। नीलम ने ड्राइंग रूम के वस्त में खड़े होकर बकायदा रोना पीटना शुरू कर दिया। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था और वो अपने वालिदैन के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही थी। लाउंज का माहौल अक्सर बदल चुका था। एक तरफ नीलम का रोना धोना जारी था, तो दूसरी तरफ जावेर एक चट्टान की तरह मजबूत और सर्द तासरात लिए खड़ा था, जिसने अपनी बात से एक इंच भी पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया था। निगत बेगम अपनी बेटी की हालत देखकर परेशान हो रही थी, जबकि जावेर के वालिद, जो अपने इकलौते बेटे की इस धमकी से लर्ज कर रह गए थे, उन्होंने इंतहाई बेबसी से अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ दिए। मेरी बहन, आज तेरे भाई की इज्जत और उसके बुढ़ापे का सहारा तेरे हाथ में है। मैं जानता हूँ कि ये सब बहुत भयानक है, मगर तू जावियर को जानती है। अगर उसने ये घर छोड़ दिया तो हम जीते जी मर जाएंगे। तुम अपनी बेटी मेरे जावियर को दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरा बेटा उसे पलकों पर बिठा के रखेगा और उसे कभी कोई दुख नहीं देगा। अपने भाई की बराई हुई आवाज और आंखों में आंसू देखकर निगत बेगम का दिल पसीज गया और उन्होंने रोते हुए अपने भाई को गले लगाकर हामी भर ली थी। मगर नुमान साहब के माथे पर अभी भी शदीद तफक्कुरात की लकीरें थी। भाईजान, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर बेटी की मर्जी के बगैर इतनी जल्दी ये फैसला कैसे कर लूं? नीलम अभी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और जावेर का गुस्सा तो आप जानते ही हैं। नुमान साहब ने इंतहाई शशुपिंज में मुब्तला होकर अपने तहफुजात का इजहार किया। ये फैसला अब हो चुका है नुमान, और इस घर में मेरे फैसले के आगे कोई नहीं बोलता। मेरी नवासी मेरे पोते के निकाह में चढ़ेगी और ये मेरा हतमा ही फैसला है। नीलम बेटा, तुम मेरी बात नहीं मानोगी क्या? दादाजान महरोज शम्स की बारोब और गर्जदार आवाज ने ड्राइंग रूम में छाई हर बहस को खत्म कर दिया था। नीलम की हिचकियां बंद हो गई थी और वो बार बार अपनी माँ की तरफ दिख रही थी कि शायद वो इसकी हिमायत करे, मगर निगत बेगम खुद रोते हुए दादाजान के फैसले के आगे सर झुका चुकी थी। मुझे पता है आप सबको इस हिटलर से डर लगता है, इसलिए मेरी बलि चढ़ा रहे हैं। मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी उसके साथ। नीलम ने सिसकियों के दरमियान अपना आखिरी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था, मगर दादाजान ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। मेरी बच्ची, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूंगा। जावेर गुस्से का तेज जरूर है, मगर वो तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, ये मेरा तुमसे वादा है। दादाजान की शक्कत और उनके आंसू देखकर नीलम ने मुकम्मल तौर पर हार मान ली थी। उसने बेबसी से रोते हुए अपना सर इस बात में सर हिला दिया और अपनी माँ के गले रखकर फूट फूट कर रोने लगी। नीलम के इस फैसले पर हवेली में मौजूद सबसे ज्यादा खुश अगर कोई था, वो सईदा बेगम थी, जो भी कुछ देर पहले तक सदमे से नढाल थी। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर नीलम का माथा चूमा था और खुशी से आंसू साफ करने लगी थी। यूं एक टूटते हुए रिश्ते की हतक से बचने के लिए नीलम और जावियर का रिश्ता तय पा गया था। कुदरत उन दोनों की किस्मत के धागे बहुत खूबसूरत अंदाज में उलझा चुकी थी। शाम के साए गहरे होने लगे थे। हवेली का माहौल एक बार फिर बदल चुका था। उदासी और सदमे की जगह अब एक रवायती खुशी और चहल पहल ने ले ली थी, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों एक ही घर के थे। इससे सब कजन्स ने मिलकर इस अचानक होने वाली शादी को भरपूर तरीके से मनाने का फैसला किया था। नीलम को दुल्हन के कमरे में बैठाकर खूबसूरती से सजा दिया गया था। उसने सुर्ख रंग का भारी आरूसी जोड़ा पहन रखा था, मगर अब उसके चेहरे पर एक दिलकश रूप चढ़ चुका था। वो भारी जेवरात और सुर्ख दुपट्टे में सिमटी हुई बड़ी दिलकश लग रही थी। जोया, माहा, दानियाल उसके गिर्द बैठे उसे मुसलसल छेड़ रहे थे। हाय हमारी प्यारी नीलम, आज सच में किसी शहजादी जैसी लग रही है। आखिर तुम्हें तुम्हारा जहान सिकंदर मिल ही गया। जोया ने शरारत से आंख मारते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि ये पिंजरे में कैद हो गई है, अब इस जालिम से छुटकारा नहीं मिलेगा। हीरा ने भी लुकमा लगाया, जिस पर नीलम का दिल पहले ही डर से कांप रहा था। उसने गुस्से से घूरते पास पड़ा कुशन उठाकर मारा था। तुम सबको मेरा मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आ रहा है ना? मेरे यहाँ अपनी जान पे बनी हुई है, तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। बहुत बुरे हो तुम सब, जाओ यहाँ से। नीलम ने मसनूई गुस्से से मुंह बनाया, मगर माहा ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके गले में बाहें डाल दी थी। अरे, हम तो बस मजाक कर रहे थे, तुम तो सच में बहुत प्यारी लग रही हो। और जावी भैया की तो किस्मत ही खुल गई है। इसे साथ कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं? माहा ने इधर उधर देखते हुए पूछा। लो, मैं आ गया हूँ, और तुम लोगों को पता है
बाहर कितना शानदार बुफे लगा हुआ है। खाने की इतनी डिशेज हैं कि मैं खूब तोड़ने वाला हूँ। आज तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। साथ मुंह में गुलाब जामुन ठूसते हुए कमरे में दाखिल हुआ तो सब कजन्स का एक जोरदार कहका गूंजा। उन सबकी उस प्यारी सी नोक-झोंक और हंसी मजाक में नीलम भी कुछ पल के लिए फरामोश कर बैठी थी कि वो किस हिटलर की बीवी बनने जा रही है। उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। चलो जी, सब लोग बाहर आ जाओ, दूल्हा आ गया है। अब इन दोनों की एक साथ फोटोग्राफी होनी है। हिरा ने कमरे में आकर ऐलान किया तो नीलम के तो दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। सईदा बेगम इंतहाई खुशी और चाव के साथ जावेर को जबरदस्ती खींचकर फोटोग्राफर के सामने लाई थी। जावेर स्याह रंग की शानदार शेरवानी में मलबूस हद से ज्यादा पुरकशिश लग रहा था, मगर उसके चेहरे पर बहरहाल संजीदगी थी। नीलम को जब कजन्स के जुड़मट में लाया गया तो वो नजरें झुकाए आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। जावेर की निगाहें एक लम्हे के लिए उस सरापाए हुस्न पर ठहरी थी और उसकी आंखों में दाइश उभरी थी जिसे उसने फौरन से छुपा लिया था। दोनों को एक साथ खड़ा किया गया, मगर उनके दरमियान अभी भी खासा फासला था। वो दोनों एक दूसरे से काफी फासले पर फोटोग्राफी की हिदायत पर पोज देते पिक्चर खिंचवा रहे थे। अरे बेटा, थोड़ा करीब हो जाओ, मियाँ बीवी हो, कोई अजनबी थोड़ी हो। सईदा बेगम ने मुस्कुराते नीलम को जावेर की जानिब धकेला था। नीलम जो पहले ही नर्वस थी, इस अचानक धक्के पर घबरा गई। उसने ऊंची हील्स पहन रखी थी और उसका पांव अपनी ही बाहरी लहंगे में बुरी तरह से उलझ गया था। इससे पहले कि वो सबके सामने मुंह के बल जमीन पर गिरती, जावेर ने पिछली किसी तेजी से आगे बढ़कर अपना एक मजबूत बाजू उसकी कमर में डाला और इंतहाई महारत से उसे अपने साथ लगाकर संभाल लिया था। नीलम ने डर के मारे बेसाख्ता जावेर की शेरवानी के कॉलर को मुट्ठियों में जकड़ लिया था। जावेर का चेहरा नीलम के चेहरे के बिल्कुल करीब था। उन दोनों की निगाहों का एक इंतहाई गहरा और मसहूर का तसादुम हुआ था। जावेर की उन गहरी स्याह आंखों में इस वक्त एक ऐसी उलझी हुई कशिश थी जिसने नीलम के वजूद को पिघला कर रख दिया था। उसकी मखसूस मर्दाना खुशबू नीलम की हवासों पर छा रही थी। वो दोनों जैसे इर्द गिर्द की दुनिया को भूलकर एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। कैमरे की फ्लैश लाइट चमकी और ये दिलकश लम्हा हमेशा के लिए कैद हो गया। ओह, क्या बात है जावे भैया, कमाल कर दिया आपने तो। अब तो छोड़ दे भाभी को। सब कजिन्स ने एक साथ जोरदार हूटिंग की थी और तालियां भी बजाई थी, जिस पर नीलम ने बुरी तरह शर्माकर फौरन खुद को जावेर की गिरफ्त से आजाद किया था और उसका चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो गया था। जावेर ने भी गला खनखारते अपना रुख मोड़ लिया था, मगर उसके होंठों के किनारे पर दिल फरेब और शरारती सी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी और हवेली में दिन पर मचलने वाला शोर-ओ-गुल अब एक पुरसुकून खामोशी में ढल चुका था। मेहमान अपने अपने कमरों में जा चुके थे और थकावट ने सबको गहरी नींद सुला दिया था। जावेर अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था तो उसके दिल में थोड़ी उलझन थी। आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे तवील और गैर मुतवक्का दिन साबित हुआ था। हालात ने उसे एक ऐसे फैसले पर मजबूर कर दिया था जिसका उसने ख्वाब में भी नहीं तसव्वुर किया था। वो लड़की जो उसके लिए हमेशा दर्द सर बनी रही थी, तब उसके दिल का करार बन गई और तकदीर के लिखे से आज उसके नाम से मंसूब होकर उसके कमरे में मौजूद थी। कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर जावेर ने एक गहरी सांस ली और शेरवानी के कॉलर को थोड़ा सा ढीला करते दरवाजे का हैंडल घुमाया। वो जानता था कि अंदर उसे रवायती दुल्हन कम जिद्दी लड़की मिलेगी जो यकीनी तौर पर उससे लड़ने के लिए तैयार बैठी होगी। कमरे का अंदर कदम रखते ही सुर्ख गुलाब और मोतिया की मशहूर मदहोश करने वाली खुशबू ने उसके हवासों को अपनी लपेट में ले लिया था, मगर उसकी नजरें सीधी बेड पर जाकर ठहरी थी और वहां का मंजर देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। नीलम अपनी भारी भरकम सुर्ख आरूसी लहंगे को दोनों हाथों से समेटे बेड के बिल्कुल दरमियान में पांव ऊपर किए बैठी थी। उसका सारा दुपट्टा उलझा हुआ था और बारीक जेवरात के बावजूद उसके चेहरे पर शदीद खौफ था। वो आंखें फाड़े फर्श की तरफ देख रही थी। जावेर को लगा कि उसके खिलाफ कोई नया महाज खड़ा करने की तैयारी कर रही है और उसने जानबूझकर ये ड्रामा रचाया। क्या बदतमीजी है ये, उतरो नीचे, तुम कभी नहीं सुधर सकती क्या? जावेर की सर्द आवाज कमरे के पुरसुकून माहौल में गूंजी, मगर नीलम पर उसकी डांट का कोई असर नहीं हुआ। वो उसी तरह बेड पर सुकड़ी बैठी रही और उसने खौफजदा निगाहों से जावेर को देखते देखते नफीमी सर हिलाया। नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगी, वहां फर्श पर चूहा है, मुझे बहुत डर लगता है इन चूहों से, आप इसे बाहर निकालें।
नीलम की आवाज में गहरी और हल्की सी कपकपाहट थी। वो वाकई बुरी तरह से डरी हुई लग रही थी, मगर जावेर के लिए उसकी ये बात मजाक थी। वो जानता था नीलम कितनी डरामेबाज है। जावेर ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते अपने दोनों हाथ सीने पर बांध दिए। ड्रामे करना बंद करो नीलम, और शराफत से नीचे उतरो। और ये कमरा मेरा है, यहाँ रोजाना सफाई होती है, यहाँ कोई चूहा हो ही नहीं सकता। जावेर ने हथनी लहजे में कहा, और एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि अचानक उसकी नजर बैठ के करीब पड़े सोफे के नीचे गई, जहाँ एक मोटा और स्याह रंग का चूहा तेजी से निकलकर सीधा जावेर के कदमों में भागा। जावेर जो अभी तक नीलम पर रुक जा रहा था, इस अचानक आफत को अपनी तरफ बढ़ता देख उसके हवास उठ गए। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसका अपना दिमागी तवाजुन डगमगा गया। फर्श से अपने तमाम तर संजीदगी और रोब को बलाए ताक रखते बेसाख्ता बेड की तरफ एक लंबी छलांग लगाई और अपने भारी जूतों समेत सीधा बेड पर नीलम के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि नीलम हैरत से आंखें फाड़े उस 6 फीट के चौड़े शाने वाले मर्द को देखनी थी, जो चंद सेकंड पहले तक उसे डांट रहा था और अब खुद एक चूहे के डर से उसके साथ बेड पर खड़ा था। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। सिर्फ उन दोनों की तेज सांसों की आवाजें आ रही थी। नीलम ने अपने खौफ को भूलकर जावियार की उस इंतहाई मजाक का खेज रूप को देखा, तो उसके होंठों पर एक बेसाख्ता हंसी उभर आई, जिसे उसने मुश्किल दबाने की कोशिश की थी। इतना हट्टा कट्टा मुस्टंडा भारी मसल्स वाला चौड़े शाने और बहादुर बेइंतहा इंसान एक छोटे से चूहे से डरकर बेड पर चढ़ गया। यार प्लीज मारे ना इसे, अब तो बड़े हिटलर बनते हैं। नीलम ने उसके बिल्कुल करीब खड़े होकर शौक अंदाज में तंज किए। उसकी इस बेबाक बात पर जावेर को जैसे एकदम से अपनी इस अनकाना हरकत का एहसास हुआ। जावेर ने इंतहाई नागवारी से खफत से नीलम की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अभी तक शरारत नाच रही थी। आपको भी चूहों से डर लगता है? क्या बात है, आज तो जावेर शम्स का एक नया ही रूप देखने को मिला है। नीलम अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी, और उसकी हंसी जावेर के जब्त के सारे बंधन तोड़ रही थी। इससे पहले कि नीलम कोई और तंज बात करती, जावेर ने बिजली की सी तेजी से अपना बाजू नीलम की नाजुक कमर के गिर्द लपेटा और उसे एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। नीलम की हंसी उसके होंठों पर जम सी गई। जावेर ने उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ते उसकी कमर को हल्का सा पीछे की तरफ मोड़ा और खुद उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुक गया। जावेर की स्याह आंखों में मदहोश कर देने वाली तपिश थी, जिसने नीलम के वजूद को एक लम्हे में पिघला कर रख दिया था। दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब थे कि सांसें तक महसूस कर सकते थे। इसे जाने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं किससे डरता हूँ और कैसे डराता हूँ। अरे ये जुबान ना बहुत ज्यादा चलने लगी, इसे लगाम देना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। जावेर की आवाज धीमी सी सरगोशी में बदल चुकी थी, जिसमें अजीब सा नशा था। नीलम की सारी शोखी जावेर की इस अचानक कुर्बत के सामने खो गई। वो उसकी आंखों की गहराई में डूबती जा रही थी और उसके हाथ बेसाख्ता जावेर के कंधे पर जा टिके थे। ये इन दोनों के दरमियान कुर्बत का पहला लम्हा था। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा हल्का सा बजा और बाहर से एक मुलाजमा की आवाज आई, जावेर बेटा, सईदा बेगम ने मुझे कमरे में दूध का गिलास रखने भेजा है। दरवाजे पर होने वाली इस दस्तक ने उन दोनों को इस शहर से बाहर निकाला था। जावेर ने नीलम को कमर से अपनी गिरफ्त ढीली की और जल्दी से बेड से नीचे उतर गए। मुलाजमा अंदर दाखिल हुई तो बेड के पास ही स्मूटे चूहे को देखकर भाग कर बाथरूम में झाड़ू ले आई और थोड़ी सी तगदत के बाद झाड़ू से उसे मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया था। मुलाजमा के जाने के बाद नीलम अभी तक बेड पर बैठी अपनी बेकाबू धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही थी। जावेर ने दरवाजा लॉक किया और वापस पलट कर नीलम की तरफ देखा। चलो तुम भी नीचे उतरो और इस कमरे की सेटिंग ठीक करो। ये बेडशीट किस तरह समेट कर रखी हुई है तुमने? जावेर ने अपने उसी पुराने रोब से उसे अंदाजा किया था, मगर अब उसकी आवाज में पहले जैसे सख्ती नहीं थी। क्या मैं पहली रात की दुल्हन हूँ जो आप मुझसे कमरा सेट करवा रहे हैं? आपको गुनाह देगा अल्लाह। को जरा भी एहसास नहीं है कि मैं सुबह से कितना थकी हुई हूँ? नीलम ने बेड के तकिए पर सरकते एक गहरा सांस भरा। वो इंतहाई मासूमियत और शिकायत कर रही थी। उसे लगा था कि जावेर उसकी इस बात पर गुस्सा करेगा, मगर अगले लम्हे जावेर ने अपनी शेरवानी के बटन खोलते उसे उतारा और सोफे पर फेंक दिया और बड़े पुरसुकून मगर खतरनाक अंदाज में चलता बेड की तरफ आया था।
वो नीलम के बिल्कुल करीब बैठकर झुका और उस पर एक साए की तरह छा गया था। नीलम ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर जावियर ने अपने दोनों हाथ उसके गिर्द बेड पर टिकाकर उसे अपने हिसार में मुकम्मल तौर पर कैद कर लिया था। चलो, फिर हम वो काम करते हैं जिससे सवाब मिले। जावियर की आवाज में मदहोशकन शरारत थी, जिसे सुनकर नीलम के हवास काम करना छोड़ गए थे। क्या मतलब है आपका? नीलम ने बामुश्किल हकलाते हुए पूछा। उसकी आंखें जावियर की आंखों में मौजूद उस दीवानगी को देखकर झुक गई थी। जी, वो पहली बार महसूस कर रही थी लव एंड रोमांस, ताकि तुम भी सुबह उठकर सबको फख्र से बता सको कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है और तुमने कितने मजबूत इंसान को अपने काबू में कर लिया है। जावेर ने उसके कान के बिल्कुल करीब झुककर सरगोशी की थी। फिर उसने दीवानगी से अपना चेहरा नीलम की गर्दन में छुपा लिया था। जावेर के गर्म लबों के लम्स ने नीलम के पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ा दी थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जावेर उसे बखूबी महसूस कर सकता था। जावेर ने जब उसकी सराहीदार गर्दन पर अपने दांतों का हल्का सा और प्यार भरा निशान छोड़ा, तो नीलम के मुंह से बेसाख्ता और दबी दबी से सिसकी निकली थी। उसने घबराकर अपने दोनों हाथ जावियर के चौड़े सीने पर रखे और उसे खुद से दूर करने की कमजोर सी कोशिश की थी। नहीं, मुझे लगता है कि मैं कमरा ही साफ कर देती हूँ, इससे शायद सवाब मिलेगा। प्लीज पीछे हटे। नीलम की आवाज में कपकपाहट और हया थी, जो जावियर को और भी दीवाना बना रही थी। उसका वो सारा गुस्सा, वो सारी जिद और वो तंजिया अंदाज जावियर की बेपनाह मोहब्बत और गुर्बत के आगे बिल्कुल खत्म हो चुका था। जाविर ने मुस्कुराते हुए सर उठाया और उसकी उन झुकी हुई और हया से कांपती पलकों को चूमा था। अब बहुत देर हो चुकी है मेरी हया सुलेमान, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जाविर ने उसे जन्नत के पत्तों की हीरोइन के नाम से छेड़कर पुकारा था और हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रखा लैंप ऑफ कर दिया था और कमरे में अंधेरा छा गया था। उस अंधेरे में जाविर उस पर मुकम्मल तौर पर साया फगन हो गया था और उसने नीलम के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। नफरत और गुस्से से जुड़ने वाला वो रिश्ता, जो चंद घंटे पहले तक एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, उस निकाह के पकीजा बंधन में बनते दिलों को एक कर गया था। जावेर ने उसे अपनी मोहब्बत के ऐसे रंग में रंगा था कि वो दोनों अपनी सारी पुरानी अदावतें एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर पनाह कर भूल चुके थे। वो रात उनके लिए एक ऐसी सहर अंगेज व खूबसूरत दुनिया की सैर में गुजर गई थी, जिसका तसव्वुर उन्होंने कभी नहीं किया था। अगली सुबह की रोशन किरणों ने जब कमरे में दस्तक दी, तो नीलम ने मीठे मीठे दर्द के एहसास के साथ अपनी आंखें खोली। उसका सर जावेर के मजबूत सीने पर था और जावेर का एक बाजू उसकी कमर के गिर्द इंतहाई हिफाजत से लिपटा हुआ था। नीलम ने मुस्कुराते उस सोते हुए हिटलर के पुरसुकून चेहरे को देखा, जिससे वो जान छुड़ाना चाहती थी, और आज वो उसकी जिंदगी के सबसे कीमती असासा बन चुका था। उसे शर्मा कर जावेर के बाजू को हटाना चाहा ताकि वो उठकर तैयार हो सके, मगर जावेर की गिरफ्त एकदम से सख्त हो गई। उसने नीलम को मजीद अपने करीब खींच लिया। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो बेगम? अभी तो सुबह हुई है, जरा अपने शोर को जी भर के देखने तो दो। जावेर ने अपनी आंखें खोले बगैर ही नींद भरी और बारी आवाज में कहा, तो नीलम का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आप तो सो रहे थे, आपको कैसे पता चला मैं उठ रही हूँ? छोड़े ना मुझे। नीलम ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर जावेर ने मुस्कुराते अपनी आंखें खोली, उसे गहरी नजरों से देखा। रात को तो तुम मुझसे बहुत डर रही थी, सुबह होते ही तुम्हारी वो पुरानी जुबान फिर से चलना शुरू हो गई। जावेर ने उसकी नाक की नोक को प्यार से छेड़ते हुए कहा। नीलम ने गुस्से से मुंह बनाया था। मैं किसी से नहीं डरती, समझे आप? वो बस मैं थक गई थी, वरना आपको बताती। नीलम की इस प्यारी सी जिद पर जावेर ने एक जोरदार कहका लगाया और उसे अपने सीने में छुपा लिया था। जावेर ने उसके माथे पर अपने लब रखे और प्यार भरी सरगोशी की थी। तुम सच में मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो मेरे यारे दिलम। इस खूबसूरत इकरार के साथ ही उनकी जिंदगी का वो नया और हसीन बाब शुरू हो गया था, जिसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की। तो यही कहानी का एख्ताताम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में भी लाजमी कीजिएगा। तो अगली कहानी के साथ जल्द फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।